السلام علیکم ناظرین ناظرین پہاڑی ورثہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہاڑی ورثہ صرف پہاڑی بولنے والوں کے لیے نہیں بلکہ پہاڑوں میں رہنے والے دیگر اقوام کے لیے بھی ہے، اور ہمارے ساتھ آج خاص مہمان ہیں گلگت کے پہاڑوں سے نواز خان ناجی، ممبر گلگت بلتستان اسمبلی بھی ہیں، اور ان کی اپنی ایک سیاسی شناخت ہے۔ سیاسی شناخت اس سینس میں کہ یہ گلگت کے وہ کمپریس لیڈر ہیں جو ایک عرصے سے، جب 2009 میں اسمبلی کا قیام وجود میں آیا تھا، اس وقت سے ممبر اسمبلی منتخب ہو رہے، اور یہ میرے خیال میں پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں خطوں میں یہ اکلوتے کمپریس لیڈر ہیں جو اسمبلی کے فلور پہ آتے ہیں اور اپنے حقوق کی کھل کر بات کرتے ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم جو اس وقت پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں پبلک موومنٹس چل رہی ہیں انہی سے کریں گے، اور پھر مزید بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ اس وقت آج کے دن میں ہمیں چلاس میں ایک بڑے اجتماع دیکھنے کو ملے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کافی وقت سے ہمیں وقفے سے اس طرح کے اجتماعات نظر آتے ہیں، کبھی وہ سبسڈی کے معاملے پہ ہوتے ہیں، کبھی وہ ڈیمز کے معاملے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ مقامی ایشوز کے معاملے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عوام کے اندر اس قدر بے چینی ہے اور چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے عوام اس قدر جمع ہو رہی ہے، تو کیا یہ کسی بڑے مقصد کے لیے بھی ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے فورم پہ بات کرنے کے لیے۔ تو میں اس میں ایک بڑا کمپلیکس ہے نا، پوری بات کو وہ سمجھنے کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ قوموں میں، ملکوں میں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز اور تحریکیں جو ہے وہ ایشوز کو اٹھاتے ہیں، اپنے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، یا پھر اس کا جو بھی حل نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ تقریباً کرپٹ کی گئی ہے، ان کو جان بوجھ کے اور کچھ تو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، تو اس وجہ سے پبلک جو ہے وہ پانی کی طرح ہوتی ہے، تو ایک طرف سے آپ بند کریں گے دوسری طرف سے وہ نکلے گا۔ تو اسی طرح یہ جو عوامی ایکشن کمیٹیز، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو، یہ اس وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ اصولی طور پر کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو آئین دلائے، آپ کو حقوق دلائے، آپ کو وہ تو چیزوں کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قیمتیں مقرر کرنا اور لوگوں کی چھوٹے موٹے جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہے ان پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ اس علاقے کے اندر موومنٹس چل نہیں پاتی ہے، باقی تمام چیزوں کو جو ہے وہ یا تو چلنے ہی نہیں دیتے ہیں، کریش کر لیتے ہیں، یا پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کرپٹ کر دیتے ہیں، مطلب اس کے وہ جو ہے وجود کو جو ہے وہ خراب کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پبلک اپنی ضروریات کے مطابق اس طرح کی فارمز بناتی ہے، اور وہ اپنے بنیادی مقاصد میں جو ابتدائی مقاصد ہے خاص کر اس پہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ نے جو دوسرا اہم سوال پوچھا کہ اس سے کوئی بہت بڑا وہ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہی کمیٹیاں بہت بڑے والے کی طرف جائیں گی تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا جو پولیٹیکل پارٹیز اور تحریکوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہو کر یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، ہمیں جدوجہد کرنا چاہیے، بڑے کسی مقصد کے لیے بھی ایسا ماحول بن سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ایکشن کمیٹیز ڈے ٹو ڈے ایشوز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اے جے کے میں ہمیں دیکھنے کو یہ ملا، گلگت بلتستان کی سچویشن سے میں پوری طرح اویئر نہیں ہوں، لیکن اے جے کے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک میس موبلائزیشن ہوئی ہے، لوگ اپنے اسی پلیٹ فارم سے آئینی حقوق کی بات بھی کی گئی، اسی پلیٹ فارم سے جو 1947 کی گورنمنٹ کا اعلامیہ تھا اس کے نفاذ کی بات بھی کی گئی۔ تو کیا یہ ایک کوئی غیر حقیقی چیز نظر آتی ہے، یا پھر جو یہ پبلک کی ایکچوئل آواز ہے لیکن ان کو اپنے ایکسپریس کرنے کے لیے اپنے جذبات کو ایک یہی پلیٹ فارم ملا؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا، یہ جو گلگت میں بھی یہی ہے تو آزاد کشمیر میں بھی تقریباً یہی بات ہے، جس سے یہ ہے جناب عالی کی لوگ اپنے جو وہ ہے نیشنل آئیڈینٹی، شناخت اور آزادی اور قومی حقوق اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس وغیرہ، ان کا تو سب لوگوں کو
ज़रूरत है, सब लोग अवेयर है, सब ये चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बना सकती है, मूव नहीं बना सकती है। उसमें बनता है तो भी उसमें जो है वो तमाम क़ुव्वतें जो है वो हरकत में आती है और उनको रोकते हैं। अब ये जो अवामी कमेटीज़ है, तो अवामी कमेटीज़ में बुनियादी चीज़ें जो है अवाम की बिल्कुल इब्तदाई जो ज़रूरियात है, उन पे बात उठाई जाती है, तो उसमें मास मोबिलाइज़ेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। जब लोग मोबिलाइज़ होते हैं, जब ऊपर आते हैं, तो वो सिर्फ़ क्यों रोटी और बिजली और उसकी बात करें, वो अपने बुनियादी हक की बात क्यों ना करें? तो ज़ाहिर है अवामी कमेटीज़ भी उस बात को उठाती है और मेन जो है वो इश्यू ही वो बन जाता है। क्योंकि आप देखिए, आप शादी या किसी मौत के घर में भी लोग जमा होते हैं तो ये बातें करते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। तो इसमें तो वो अपने गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों ना करे? तो वही चीज़ आज़ाद कश्मीर में भी है। सही। अच्छा, ये बताइए कि गिलगित के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान रीजन के हवाले से मैं बात करूँगा। अब 1 दहाई पहले या 2 दहाई पहले हमें ये चीज़ देखने को मिलती थी कि गिलगित के अवाम में आज़ाद कश्मीर के को लेकर एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाता था और सख्त किस्म की तनकीद की जाती थी एजेके की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिशियंस पे। लेकिन अभी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि गिलगित के लोग भी स्टेट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो रियासत जम्मू कश्मीर का एक बुनियादी जुज़्व है, जिसने उसको महफूज़ किए रखा है एक लंबे अरसे तक। आप क्या देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई तब्दीली आई है? देखिए, ये फिर भी कम मैं समझता हूँ, क्योंकि 90s के शुरू से, मतलब 80s के एंड से हमने काम शुरू किया है जनाब आली कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो तनाज़े कश्मीर के तनाजुर में देखना चाहिए, उसको किसी सूबे के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। तो अब 35 साल गुजरे हैं मेरा ज़ाती तौर पर इस मामले में। हाँ, उसमें भी कोई शक नहीं है कि उससे पहले लोगों का इस तरह कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि एंटी कश्मीर मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। वो सूबे वाली कहानी जो है वो ईमान का हिस्सा समझते थे लोग। तो ये 30-35 सालों के दौरान बड़ा काम हुआ है, आहिस्ता से हुआ है या बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है, वो अपनी जगह पर, लेकिन काम हुआ है। तो अब नई पढ़ी लिखी पौध जो है ना, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। वो पुराने बाबे जितने भी वो है, जिनके ज़हन में ये था कि ये हम सच पाकिस्तानी है, तो हमने इल्हाक किया, तो हमने ये किया वो किया, तो वो बातें अब तकरीबन मजाक बन गई है। तो लोगों को ट्रू पिक्चर जो है वो सामने आया है। तो अगर इल्हाक होता तो इल्हाक की भी बात करते, लेकिन ऐसा है नहीं ना। तो कौन सा हमें कोई वो इतना कड़वा नहीं लगता है। जहाँ हमारे साथ हमारे सामने चित्राल दीर स्वार साहब ने इल्हाक किया था तो क्या हुआ? तो हमारे अगर इल्हाक इस तरह हो जाता तो हम उस पर बात करते हैं। लेकिन ये चूंकि कश्मीर के साथ इसका मामला है, तो हमने इसी तनाजुर में देखा, तो उसी तनाजुर में जो भी होगा, जो कश्मीरियों के साथ होगा वो हमारे साथ होगा। हमारा इलाका बल्कि श्रीनगर से इवन देन जम्मू से लद्दाख और मुजफ्फराबाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा हमारा 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 और ज़्यादा हक बनता है कि हम इस बात को बेहतर तरीके से जो है वो एलिब्रेट करें, लोगों को बताए, खुद समझे और हुकूमतों को भी समझाए। अच्छा, इस वक्त 2-3 चीज़ें हमें देखने को आ रही हैं कि 2009 के बाद वक्तन फ़वक्तन इस तरह की अफ़वाहें सामने आई कि पाकिस्तान अबूरी सूबा बना रहा है, पाकिस्तान इसको बाज़ औक़ात इस तरह की खबरें भी सामने आई कि आइन का हिस्सा बनाने जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट की कुछ फैसले भी हमें देखने को मिले, ऑब्जर्वेशंस, फैसले तो नहीं, ऑब्जर्वेशंस के डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आप क्या समझते हैं, जो पब्लिक राइट्स हैं, अवामी हकूक़ हैं और अवाम की जो मिल्कियत की बात करती है, तो वो इस डिस्प्यूट का हिस्सा रहते हुए किस तरह से वो अवाम को किस तरह से उनको मिल्कियत मिल सकती है और उनको क्या पाकिस्तान के कुछ इदारों में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए? ये तो आप फिर मुझे कहना पड़ेगा, तो आप मुझे शाबाश देना। तो वो तो मैंने कहा था, ये सुबह नहीं भर सकता है, बाकी तो सब तैयार थे। बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट से लेकर, असेंबली से लेकर, पॉलिटिकल पार्टी से लेकर, सब मुझे पागल समझते थे, ये ऐसी बकवास बातें करता है। तो अब तो देखे ना, अगर वो उस वक्त सुबह बंद था तो मेरी कितनी बड़ी सुबकी होती। और मुझे लोग क्या कहते हैं कि ये एजेंट है, तो ये फलां है, तो इसकी ख्वाहिश है। मैंने तो, मेरी ख्वाहिश की तो बात नहीं थी, वो लीगली ऐसा हो नहीं सकता था। तो वो वहाँ लॉ नोइंग लोग भी बैठे हुए हैं, वकील बैठे हैं, बैरिस्टर्स बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, सारे बैठे।
सब एक ही आवाज में थे कि जनाब वाले अब प्रोविंस हम बना रहे हैं। बिल्कुल तो मैं अकेला मैं कह रहा था कि ये नहीं बन सकता है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि मेरी नॉलेज सही थी। मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई ताकत से रोका है या मैंने कोई नहीं, मेरी नॉलेज सही थी। और मेरी नॉलेज से उस वक्त मैं खुद पर अल्लाह के ज़ात पर ऐसा वो करता हूँ, उनका एहसान है अल्लाह का कि मेरी नॉलेज अब भी सही है। आपने ये कहा कि इससे एक सुबह राइट्स बनाए मिलने के बगैर लिए जी। राइट्स नहीं, राइट से कोई सुबह बना के देना जरूरी थोड़ी है। एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का अबूरी सूबा बना के इस इलाके को चलाते हैं 2 मिनट के लिए, तो हमें कोई बहुत बड़ा हेजिटेशन करके हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की सरकार वैसे भी हमारे ऊपर हुकूमत करती है और 4 नुमाइंदगियां दे के करे, तो हमारे कोई पेट में दर्द होने वाली बात तो नहीं है ना। और बेहतर है हमारे कुछ लोग यहाँ भी आएंगे। बाकी आम लोगों को जो तासर दिया जाता है कि सूबा बनेगा तो ये होगा वो होगा, तो वो भावलपुर में क्या हुआ, खैरपुर में क्या हुआ, तो आगे क्या कहते हैं थर में क्या हुआ, तो आपके को होगा। लेकिन वो बातें फजूल है। जो रास्ता है उसको अपनाए। रास्ता ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली को स्ट्रेंथन करे, गिलगित बल्तिस्तान के सेटअप को स्ट्रेंथन करे, इसके जरिए से काम करे। और उससे ज्यादा मैं अपने लोगों से कहूंगा, मैं अपने लोगों से, आप क्यों वज़ीर आज़म और सदर बनाना चाहते हैं? आप क्यों सदर और वज़ीर आज़म के ओहदों के लिए, आपके पास जो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है आपके पास है, इनका क्या आउटपुट है? बिल्कुल सन 2009 से अब तक पानी का मामला तो हमारे पास है ना, बिजली का मामला हमारे पास है, स्कूल का मामला हमारे पास है, अस्पताल का मामला हमारे पास है, अच्छा जनाब वाली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और ये बुनियादी चीजें जो है वो तो हमारे पास है। क्या अब पानी पर हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अगर पब्लिक फेस करती है तो बिजली में कर रही है, पब्लिक पे फेस कर रही है तो एजुकेशन में कर रही है, पब्लिक फेस कर रही है तो हेल्थ में कर रहे हैं। ये चीजों में कौन सा पंजाबी पठान उधर बैठा हुआ, या कौन मतलब कौन सा अमेरिका या CIA साजिश कर रहा है इधर? वो तो हमारे अपने हाथ में। जितनी करप्शन है इस वक्त है, हुकूमत पाकिस्तान जो रकम गिलगित बल्तिस्तान में बेचती है, मेरे आंखों के सामने उसका 20% जमीन पे लगता है जनाब। 80% जो है हवा में उड़ता है। सबको पता है, सबको पता है, एजेंसियों को भी पता है, फौज को भी पता है, और जनाब आली सिविल सेक्रेटरीट को भी पता है, वज़राला को भी पता है, चीफ सेक्रेटरी को भी पता है, तमाम सेक्रेटरी, सबको पता है कि ऐसा है। अब कितने पैसे देकर लोगों को अमीर करना है यार? पैसों से कोई अमीर नहीं होता। अगर पैसों से अमीर होना होता तो पाकिस्तान कब का अमीर हो चुका होता, मिस्र कब का अमीर हो चुका होता, अफगानिस्तान कब का अमीर हो चुका होता, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अमेरिका से लेते रहे हैं। अच्छा, माओ ज़ेतुन ने 10 साल में चाइना को जो है जमीन से आसमान पर उठाया, तो कोई पैसे किसी से नहीं लिया था। ठीक है, घर को ऑर्डर में जो नहीं रखता है, ईमानदारी जब तक हम में नहीं आएगी तो ये कुछ नहीं होना है। ये तो मेरा ईमान है। अच्छा ये बताइए कि आपने पानी की बात की, तो क्या इंडस वाटर ट्रीटी के बाद कोई इस तरह के पानी के वसाइल जो हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान यूटिलाइज कर सकती है? पाकिस्तान जो है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत तो यूटिलाइज कर सकती है, उसमें क्या मसला है। लेकिन कोई ऐसी टेरिटरी जो है ना पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान नहीं है। जैसे हमारे लोग आमतौर पर कहते हैं ना जनाब कि पानी का रियलिटी दे दे, तो रियलिटी इस तरह तो नहीं मिलती। एक ही मुल्क के अंदर भी नहीं मिलती। अच्छा जनाब आली, अब डैम बनेगा तो डैम का तो आपके साथ आजाद कश्मीर में जो है पूरा पानी मीरपुर में भर के नाम उसका मंगला रखा, तो वो पंजाब का हो गया। हमारे पास भी वही साजिश हो गई कि 100 किलोमीटर पर जामरों में पानी भरना है, नाम रखना है जनाब बादशाह। तो बादशाह गांव जो है वो सिर्फ KPK का, हालांकि वो कोई रोड तो नहीं बनाना है ना, डैम बनाना है। तो डैम का दूसरा किनारा तो हमारा है, आगे 14-15 किलोमीटर बढ़ के 20 किलोमीटर तक हमारा है। तो ये गलत। तो देखिए डिस्ट्रस्ट कहाँ से पैदा होता है, मिसट्रस्ट कहाँ से पैदा होता है, बदएतमादी कहाँ से, इन्हीं बातों से पैदा होती है। ये जो ऊपर बैठकर बाबे जो चीजें बनाते हैं और बड़े होशियार खुद को समझते हैं, उनका यह ख्याल होता है कि लोग नहीं समझेंगे। लोग अच्छी तरह समझते हैं। अब मैंने जो बात की, क्या ये इस तरह का काम करने वालों पर किसी दूसरे मामले में आप ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंटी ह्यूमन है। ये इंसानियत नहीं है इनमें। अगर इंसानियत हो तो कितने 1-2 आदमियों का शहादतें देकर जेलों में जाकर सब कुछ करके द्यामर ऐड कराना पड़ा हमें। और आगे चलकर अभी भी न मलकियत का पता है द्यामर डैम का, न किसी चीज का पता नहीं है। और ऐसे ही मतलब वहां बिजली बनेगी, दूसरे वसाइल बनेंगे, पानी के आज जखार भी द्यामिर बाशा डैम के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ये एग्जैक्ट मुझे तो अंदर के हालात का नहीं पता है, लेकिन वहाँ भी यही है, डिस्ट्रस्ट की और बेईमानी की बातें हैं। वहाँ वो चूल्हे का सिस्टम था, या जो वादे उनके साथ हुए थे कोई नौकरी देने का,
अच्छा पेमेंट्स का अगर वो प्रॉपरली हो जाए तो बात ही खत्म है ना, अब वो अपना काम करे। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की कमी कोताहियां रखते हैं तो लोग, जाहिर है गरीब लोग है वो तो उठेंगे। अच्छा, गरीब लोग न भी हो तो भी मतलब अपनी जमीनें अपने जायदादों को देने के बाद, खत्म करने के बाद उनको प्रॉपर अगर ट्रीट नहीं होगा तो जाहिर है एहतजाज करेंगे। नहीं, अगर इन लोगों ने सही तरीके से उनको वादे के मुताबिक अगर सारा काम हुआ है तो एहतजाज नहीं करना चाहिए, एहतजाज वैसे भी खत्म होगा। तो कुछ न कुछ कमी कोताहियां तो उधर है जिसकी वजह से लोग जो है परेशान है। अच्छा, एक चीज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली है गिलगित बल्तिस्तान की जुडिशरी के हवाले से। जजेस की अपॉइंटमेंट हो या कोई भी मामला हो, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है जुडिशरी के हवाले से, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। तो आप इस मामले का इख्तिताम क्या समझते हैं? क्या गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के पास इख्तियार नहीं है वहां के जजेस की तैनाती का? उसका एहतमाम हुआ है ना, ताला लग गया है सुप्रीम अपीलेट कोर्ट पर, उससे बड़ा एहतमाम क्या होगा। ये कोई चौथा पांचवा साल है कि पता नहीं उससे भी ज्यादा गुजर गया, वो तो ताला है उधर। तो इधर सुप्रीम कोर्ट में एक ही बात करनी है जनाब वाली कि वो किसी ने एतराज डाली है गवर्नर या किसी मामले में, मुझे सही का नहीं पता, मुझे याद नहीं है वो बात। उसमें हाँ या ना करना है इसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने। वो हाँ या ना करने में अभी 4-5 साल लग रहे हैं, उधर ताले हैं। मेरे ख्याल में लाखों में पहुंच गई है ये मुख्तलिफ लोगों के केसेस, अच्छा। जिनको जो है साल में महीनों में उसका फैसला आना चाहे वो अभी जो है साल हर साल के लिए लटक गए हैं। और दूसरी बात ये सिफारशी अदालतें बना के उससे फायदे, तो फिर भी मतलब अगर एक वो है सिस्टम है उसको सिफारशी बुनियाद पर चलाना है तो वे खुदा के लिए अपनी सिफारिशात अपने सिफारशी जज भी लगाए यार, कम से कम उसमें कुछ करे। तो ये अब कौन कौन से अदारे पर हम रोए। 2018 का गिलगित बल्तिस्तान का ऑर्डर था जिसके हिसाब से इस वक्त निज़ाम चल रहा है, 2009 के ऑर्डर के मुकाबले में वो कदरे बेहतर हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन उस पर भी आप अभी बता रहे हैं कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के ताले लग चुके हैं। तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं? 2019 का भी एक नहीं, ऑर्डर देखने को है। मुस्तकबिल तो मैं ये ऑर्डर्स में या इन चीज़ों में तो कोई मुस्तकबिल नहीं होता है। वो तो एक कंपनी को चलाने के लिए भी कोई बायलॉस की छोटी सी कापी बनानी पड़ती है। तो 28,000 मुरबा मील रकबे को चलाने के लिए तो 4-5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ऑर्डर तो आएगा। ऑर्डर ही गलत है, चाहे 9 का हो या 18 का हो, उसको इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देना चाहिए इनको, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा जनाब वाले, उसको अमेंडमेंट करने का इख्तियार पब्लिक को देना चाहिए। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कौन होती है गिलगित के बारे में फैसला करने वाले? वो उसका जुरिसडिक्शन नहीं है ये। उनके पास लेजिटिमेसी क्या है? अब मैं छोटा आदमी हूँ, मुझसे मैं ये पूछूं तो मुझे तो चुप कराया जाएगा अपनी जगह पर, लेकिन क्या लेजिटिमेसी है? नहीं है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीजें गई तो अच्छा ये हुआ कि ये जो गलत फैसले करते थे वो रुक गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़ी बहुत रुकावट आ गई है, ये एक नेक शुगुन है इस लिहाज से। लेकिन उसूली तौर पर तो ये ठीक नहीं है ना। बस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर जारी किया तो उस ऑर्डर को इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, और उसको जो है कुछ शकें ऐसी है, मसलन डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, या कुछ इस तरह की चीजें जिन पर ये अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान का कोई सूबा वो नहीं कर सकता है, मसलन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है ना वो कानून साजी नहीं कर सकती है, तो उस लेवल के अलावा बाकी तमाम के मामले में कॉन्स्टिट्यूशनली लोगों को अमेंड करने का इख्तियार मिलना चाहिए। तो ये ड्रामाबाजी करके तो चीजें तो नहीं होती है ना। तो ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हम उसको क्या नाम दे देंगे? तो बस जो लोग गालियां देते हैं, जो लोग जो तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो सही कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की रीजनल अहमियत पे तो आपने बात की सरसरी सी, लेकिन सी पैक एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका गेटवे गिलगित है। तो सी पैक में गिलगित बल्तिस्तान को क्या मिल रहा है और पब्लिक सेंटीमेंट क्या है उसके लिए? देखिए, मैं आपको साफ सुथरा बता दूं, मैं असेंबली का मेंबर हूँ, तमाम चीजों से मैं वाकिफ हूँ। सी पैक में गिलगित के लिए जीरो है, जीरो। गिलगित के लिए सी पैक में जीरो है। तो बाकी रहा जनाब, लेकिन ये तो कई मरतबा कहा जाता है कि गिलगित में इतने इकोनॉमिक मसलन क्या करना, नहीं नहीं कोई इकोनॉमिक ना जोन ना ना ना। बनने। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सीपेक के नाम पर पंजाब में 6-6 रवे जो है रोड्स बनाए गए, बलूचिस्तान में वादर तक। जनाब, जहां से पानी लाना है वहां पर नलका आधा इंच का है, अब यहाँ 6 इंच के जो है पाइप लगा के
करना क्या है? आपने थाकोट से रायकोट तक रोड तक नहीं बनाया हमारा। अच्छा, इतने सारे ट्रैक और ये सारे जो है ना बड़े बड़े व्हीकल्स और दूसरी तीसरी चीजें पूरे इवन आपके आजाद कश्मीर में भी कुछ चीजें दी है। केपी तो छोड़ो, पंजाब तो छोड़ो, बलूचिस्तान तो छोड़ो, गिलगित जीरो है, जीरो। ये जो कुछ अब वो है क्या कहते हैं ये गजर रोड पे सखा जी तो पाकिस्तान का अपना है। KKHP भी जो कुछ चाइना ने किया सो किया था कोट तक, उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा है। और इसी तरह आप बादशाह दयामर डैम के ऊपर जो है ना वो चाइनीज या सीपेक के तहत काम करते हैं जो भी है, तो वो पूरा पाकिस्तान का मसला है। बादशाह डैम में तो हमारी कुर्बानी जाती है, हमें फायदा तो उसमें नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बिजली मिलेगी और हमें हमें वहां से क्या मिलना है। इन्होंने जो है ऐसा कोई ट्रीटी भी हमारे साथ नहीं किया है कि आने वाले वक्त में जो है बादशाह डैम हमारी ADP के अंदर जो है और क्या कहते हैं उसको GDP के अंदर जो है वो एक शेयर डाल सके, हिस्सा डाल सके। इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये तो पाकिस्तान के लेवल का काम है ना। तो और कौन सी चीज है जो सिपेक के तहत हमें मिली हो? मसला कोई चीज ही नहीं है। क्या द्यामिर बाशा डैम से बिजली पैदा होगी? क्योंकि द्यामिर बाशा डैम को नेशनल ग्रिड के लिए मिलाने के लिए एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत है, जिसको नहीं, उतना मुतनाज़ा बनाया इतना गया। बड़ा डैम अगर बनता है तो फिर नेशनल ग्रिड तक लाना ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। बिजली मिलेगी, ये मेरे ख्याल 4,500 मेगावाट बिजली की बात है ना। तो वो तो बिजली बेचने के लिए, बिजली से कमाने के लिए और आगे जो है वो पानी को रिजर्वायर के तहत वो करने के लिए, तो मेरे ख्याल में जो भी पैसे खर्च करता है, चाइना करता है, हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट करती है, तो वो इस बुनियाद पर करते हैं। वरना तो इतना बड़ा खर्चा करने का क्या फायदा है जब बिजली भी नहीं मिलती है वहां से, सारी चीजें। ऐसा नहीं है। अलबत्ता सीपेक चूंकि अमेरिका चाइना कन्फ्लिक्ट का शिकार है, तो इस वजह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो देदनी भी नजर आने वाले मसाइल भी आएंगे, नजर न आने वाले मसाइल भी आएंगे। ये चीज में सॉरी, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खुंजराब से ग्वादर तक ये रोड एक तो लोगों की जनवन मसाइल है, हुकूमत नाअहल है और बेवकूफ़ है और बदनीयत है, इस वजह से मसाइल आते हैं। और इन्हीं मसाइल को हाईलाइट करेंगे पाकिस्तान और चीन के मुखालिफिन, और वो जो है ना उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इनको मौका नहीं देना चाहिए था। उसूली तौर पर लोगों को उनका जो जायज़ हक है वो वक्त पर दे दे, किसी एहतजाज के बगैर दे दे। अब पूरे गर्मियों में जो है वो सुस्त का पोर्ट जो है वो एहतजाज का शिकार रहा, कोई काम नहीं हुआ। वहाँ हमारे छोटे छोटे लड़के जो है वो कोई बेरोजगार लोग जो कि बोझ है पूरे माशरे के ऊपर और वालदेन के ऊपर, वो वहाँ से थोड़ा बहुत कमा सकते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई, इधर कार्रवाई उधर कार्रवाई। तो ये चीजें करने की क्या, आप लीगल कोई रास्ता दे दे। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो ठीक है, उनको सजा दे दे, जेल में डाले, कोड़े मारे। नहीं करते हैं, अपना जाति मतलब कोई छोटा सा कारोबार करना चाहते हैं, अगर वो कोई इरेगुलरिटी कुछ करते हैं चाहे बॉर्डर के ऊपर, फिर उनको समझा दे। तरीका है। अब पॉलिसीज ऐसी क्यों बनाते हैं कि जिससे उनका रोजगार छिन जाए? फिर तो एहतजाज करेंगे, एहतजाज करेंगे तो जाहिर इंटरनेशनल मीडिया तो ये कहेगा कि पाकिस्तान और चीन जो है वो गलत कर रहे हैं, और क्या कहेंगे। अच्छा, मैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ बात करूंगा। शॉन्टर का एक मंसूबा था कि जो एक मुख्तसर रास्ता गिलगित और AJK को मिलाया जाएगा, तो वो मंसूबा किधर गया? और ये देखिए, शॉन्टर वाला तो मैं असेंबली का मेंबर ने, मैं बहुत यंग था, मतलब 90s के दौरान सरदार सिकंदर साहब यहाँ वज़ीर आज़म होते थे। हमने कई बार उस वक्त से हमने कोशिश की है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो हुकूमत जो है वो शॉन्टर से रास्ता बना दे ताकि हमारा एक ज़मीनी लिंक भी हो सके। बल्कि मैंने कुछ इस तरह की बातें भी मैंने कश्मीरी लीडरशिप से मैंने हमेशा की है कि आपने मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक कोई रास्ता नहीं बनाया। आप लोग जो है मीरपुर वाला जो है मंगला से पुल क्रॉस करके इधर पिंडी आता है, पुंछ वाला जो है वो आज़ाद पतन से आता है, मुजफ्फराबाद वाला कोहाला से आता है, और आपका प्रैक्टिकल दारुल हुकूमत जो है वो अब ये पिंडी है मुजफ्फराबाद के बजाय। तो मैं पठानों से गुजर के आता हूँ, आप पंजाबियों से गुजर के आगे हम कौन सी कौम बनेंगे? ये मेरी बहुत पहले से शिकायत रही है कि अंदर से कोई लिंक करे, और लिंक में अगर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट अगर मौका नहीं भी देती है तो नहीं तो उनका क्या नुकसान है? ऐसा कोई नुकसान पाकिस्तान का शॉन्टर में नहीं है। तो वो एक तो ये था शॉन्टर का फायदा। और दूसरी बात यह है जनाब आली कि
हमारे लिए एक महफूज अच्छा रास्ता, गिलगित के लोग जो है वहां से चल सकते हैं और मुजफ्फराबाद से गुजर सकते हैं। लेकिन थोड़ा गैर महफूज तो वो रास्ता भी है, क्योंकि वो तो कंट्रोल लाइन के ऊपर है, वो तो इंडियन जो है वो सादा हथियारों के फायर रेंज में है। तो बहरहाल जो भी है वो तो हमेशा जंग तो नहीं रहती है, या हमेशा जो है हालात खराब नहीं रहते वो हैं, तो तो इस रास्ते की जरूरत है हमें। इस तरह तो नीलम तो एक लंबे अरसे से हम्म, कंट्रोल लाइन के ऊपर है। जी जी, उससे कोई फर्क और नहीं पड़ता है, ट्रैफिक चलती है, हम कई बार वहां गए हैं, लोग आते हैं लाखों में, वहां टूरिस्ट आते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमारे लिए जो है अभी चित्राल का रास्ता भी खुलेगा, अभी ये बाबूसर भी हो गया, ये जो है वो कोहिस्तान वाला भी है, चौथा रास्ता अगर ये नेलम वाला, ये क्या कहते हैं शॉन्टर इसको, वाला। शोंटर वाला खुलता है, तो इससे स्कर्दू और अस्तूर के लिए तो इनके मुकाबले में बहुत ज्यादा शॉर्टकट है, और हमारे लिए भी शॉर्टकट है, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल ये करूंगा कि एजेके और गिलगित में जो एक लंबे अरसे से दूरियां थी, जो अब हमारे स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ हम्म। यूनिवर्सिटीज़ में जाने की वजह से कदरें कम होती दिखाई दे रही हैं, तो मुस्तकबिल क्या देखते हैं? ये उसमें दूरियां जिनकी रस्ल और रसायल न होने की वजह से खुद गिलगित बल्तिस्तान आगे एक दूसरे से दूर थे। अच्छा, हमारे डिस्ट्रिक्ट आपस में जो है वो स्टेट्स की तरह, वो असल में चीज़ें ये होती है ना कि मुश्तरका मंडी जो कम्युनिज्म का एक उसूल है ना, कि कौमियत की तारीफ ये है कि जिनकी मंडी मुश्तरक हो, मफादात मुश्तरक हो। तो हमारे मफादात अगर मुश्तरक नहीं रहेंगे, ये जो शॉन्टर की बात बार बार हम इसलिए कहते करते हैं कि मफादात हमारे अगर मुश्तरक नहीं रहेंगे तो हम एक कौम नहीं बन पाएंगे कभी भी। तो वो उस वक्त मसाइल थे, उस वक्त यहाँ पाकिस्तान में भी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे इस हिसाब से नहीं थे, वहाँ हमारे पंजाबियों के साथ कौन से रिश्ते थे, या हमारे पठानों के साथ, या सिंधियों के साथ, या बलूचियों के साथ। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग तमाम सूबों के अंदर मतलब पढ़ते हैं, बड़ी आबादियां हैं, अभी तो यहाँ कॉलोनीज भी बन गई है। तो कश्मीरियों के साथ तो हमारा जुड़ना वो एक कुदरती अमर भी है, हमारी वैसे भी ज़रूरत है। तो ये खुशाइन है, बहुत अच्छा है हमारा। अब ये समझ आ गई कि हम एक ही पॉलिटिकल यूनिट के लोग हैं, और हमें आप इसमें अपने मामलात को शेयर करना चाहिए, और फ्यूचर भी हमें कश्मीर कॉन्टेक्स्ट में ही देखना चाहिए, दोनों क्षेत्रों का। नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान, एक दूर दराज से लेकिन हमारे ही तरह एक पहाड़ी इलाके के रहने वाले और पहाड़ों के बासी। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।